करना है, आपको उसको डिस्कम्फर्ट नहीं देना है. Whatever you have to do, you have to first explain it to him and then go and do whatever you want. So the first thing that we usually do is we ask for the demographic data of the patient, right? So what is demographic data? Name, चलो एक name हो गया. आप sex, age, religion, occupation, education, residence, date of admission. Date of admission demography में नहीं आएगा, but ठीक है. और कुछ है? मैरिटल स्टेटस और हेड ऑफ फैमिली अपनी फैमिली हिस्ट्री में लेंगे, एंड दैट इज मोर रेलेवेंट फॉर पीएसएम. ठीक है, क्या? बेड नंबर. ठीक है. सो दीज आर ऑल द डेमोग्राफिक डेटा. सो व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस? जैसे तुम अगर कोई पेशेंट का डेमोग्राफी तुम पूछे उसको, तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम ये पूछे? सो लेट्स से आई एम द पेशेंट और मेरे को कुछ हो गया डिसीज. So if somebody wants to look up what disease I want, they can search using my particular details. Residence is particularly important. Can anybody tell me what is the significance of residence in any case? जैसे अब कोई बंदा है वो विदर्भ रीजन को बिलोंग करता है, कोई दूसरा बंदा है जो थाने से आया है, थाने मुंबई के पास, कोई एक है जो उत्तर प्रदेश से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई हिल एरिया में रहता है. So do you have any idea what all these natural environmental factors do to affect your health? Any idea? Freely bolo. Epidemiology, right? And emergency case, endemic diseases, epidemic diseases, yes sir. So it is very commonly said that iodine deficiency is found in hill areas, but is it true? No. Why? Because आयोडाइज सॉल्ट 2006 आई थिंक, कोई भी सॉल्ट में विदाउट आयोडीन बेच नहीं सकते. सो आयोडाइज सॉल्ट इज प्रेजेंट. सो सिंस ये हो गया दैट नॉर्म की हिल एरियाज से होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइड और गॉइटर नाउअडेज इज डिसहार्मोजेनिक गाइटर, राइट, और आयोडीन डेफिशिएंसी विच कैन बी रिलेटेड इक्वली, बट आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत रेयर होता है. Again, if let's say that the person is suffering, let's say that a 12-year-old boy is admitted for left shoulder का joint pain हो रहा है उसको after he went swimming, 12-year-old है, male है, and हम उसके examination में we see that उसको pallor present है, उसको icterus present है, and we ask family history, उसके father mother दोनों को pallor भी था, icterus भी था. Pallor icterus में समझा होगा, but are you getting some idea कि what this disease could be? He specifically from Nagpur Vidarbh region में पैदा हुआ है वो, कोई आइडिया? Right, sickle cell anemia. So in our Vidarbh region, it is very common to see sickle cell anemia, thalassemia, and diseases like anemia. Right? In Thane region, बहुत सारे mosquito है. If anyone of you has been there, so what are diseases transmitted by mosquitoes? Malaria. Right? Malaria is what? It is a hemolytic anemia. Right? What happens? RBC rupture हो जाता है. Right? That causes hemolysis. Hemolysis से anemia. RBC रप्चर हुआ, हीम बाहर आया, यू गेट इक्ट्रस. गॉट इट? इक्ट्रस मतलब येलोइश कलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ योर कंजंक्टिवा. ओके, सो दैट इज द वेरी बिग इंपॉर्टेंट. हाँ, कोई यूपी से है, बिहार से है, सो दैट इज अ प्लेस वेयर काला अजहर, हैव यू हर्ड अबाउट इट? लेशमेनियासिस, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट. सो लेट्स से दैट अ पर्सन कम्स विथ मैसिव स्प्लीनोमेगाली, fever, and the symptoms of Kala Azar, you might be suspecting that he is suffering from Kala Azar, and the residence will be a positive factor in your history which will support your diagnosis. Now, why am I telling you this? Because in Vivas, you will be very frequently asked, पहला question होता है, age का significance बताओ, name का significance बताओ, sex का significance बताओ, and finally, residence का significance बताओ. So I think you should all take out your textbooks. थोड़ा बहुत अपन स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, then I've got a PPT which I'll present and you will help me with that. The few things which examiners keep in mind whenever they are looking at you interacting with the patient. Be respectful with the patient, explain whatever you are doing to the patient and take consent. What is consent? मतलब तुम उसको पूछ रहे हो, बता रहे हो और वो हाँ बोल रहा है. Consent है ना, पूछना बताने के बाद मिलना चाहिए तुमको कि हाँ चलो you can do this. Next we have got the demographic data in which you always have to write नेम. कुछ कॉलेजेस में लिखते हैं, कुछ कॉलेज में नहीं लिखते. सो इन जीएमसी नागपुर वी टोटली राइट द नेम ऑफ द पेशेंट. वी इनफैक्ट इवन राइट द मिडल नेम, स्पेशली इन ऑब्स एंड गायनी पोस्टिंग. व्हाई इज द मिडल नेम इंपॉर्टेंट ऑब्स एंड गायनी पोस्टिंग? एग्जैक्टली.
कंसेंगनस मैरिज एक हो गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू टेक केयर कि हु इज़ द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, क्योंकि अभी दो अपने इंडिया में नेम बहुत कॉमन है, ठीक है, अदिति शर्मा करके 3 पेशेंट एडमिट हो गए, सो यू वोंट नो ना कि कौन से अदिति शर्मा का कौन सा क्या है, तो सीन बेड कौन सा है. So always middle name is also important. In your college, do whatever you follow. You can write Mr., Mrs., XYZ, whatever, or you can directly write the name. And if in obs-gynae, you have to write the middle name as well. Next, what do we give? A 24-year-old male. So 24 year is age. So now age का significance क्या है? So Kritika, right? हाँ. Name a disease that is common in young children. Let's say less than 9 years of age. कोई भी डिसीज आप बताओ. प्रोटीन डेफिशिएंसी. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज सीन वेरी कॉमनली इन चिल्ड्रन, बड़ों में नहीं होता है, ठीक है. नेम अ डिसीज विच इज कॉमन इन ओल्ड एज ग्रुप. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, राइट. कोई अपने रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल में कौन सी डिसीज कॉमन होगी? PCOS and all of that will be very common. So this is the significance of age. With each subject you have to answer it differently. Let's say you are going in from a medicine viva. They ask you what is the significance of age. So you won't start with PCOS in middle age or young reproductive age. You will start with what? In young children, we are more seeing incidence of thalassemia, sickle cell anemia, hemolytic anemias, congenital heart diseases. All of these are found in young age group. In the middle age group, we get Ewing sarcoma, we get different types of tumors, leukemia, ALL are very common after the age of 10. And after the age of 20-25, road traffic accidents, very very common because गाड़ी आ जाती है हाथ में, सब लोग ठोकना फिरना चालू कर देते हैं. And then after the age of 40-50, very common is cancers. Cancers is a predominantly disease of old age group. ऐसा जनरल नॉर्म है, बट cancers कभी भी हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं. Moreover, after the age of 50, I would say the incidence that occurs of diseases that occurs due to acquired factors like smoking, alcohol, ये सब भी increase हो जाता है, because smoking and alcohol do not affect you एकदम से, they affect you after a long period of time. 10 साल 20 साल बाद तुम्हारा liver खत्म, ठीक है. So that is the significance of age and this is how you will have to answer whenever you are asked. So have you got it? Age हो गया. Next, sex. Name a few diseases. आप बताओ. Name a few diseases which are common in females. Breast cancer, PCOD, autoimmune thyroiditis, autoimmune hemolytic anemia, postpartum hemorrhage. ये सब all are the diseases of females. Name few diseases which are common in men. Prostate cancer, lung cancer, और cancers बताओ. Colon cancer, ulcerative colitis, cirrhosis of liver, और हीमोफिलिया. हीमोफिलिया इज यस एक्स-लिंक्ड डिसीज है. कलर ब्लाइंडनेस, जो भी एक्स-लिंक्ड डिसीज है, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स. स्मॉल सेल लंग कैंसर, लेशमेनियासिस. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स कि some diseases are more common in males, some are more common in females. Like autoimmune diseases, 9 out of 10 times it will be present in a female. SLE मेल में होता है, फीमेल में होता है. More commonly it is found in females. Around 8:1 का रेशियो है. So it is huge. 8 के लिए 1, right? So ये हो गया तुम्हारा एज, सॉरी सेक्स हो गया. उसके बाद डेमोग्राफिक डेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो जस्ट टेक नोट्स वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट यू शुड नो द फॉर्मेट. सो डेमोग्राफी में ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दिस इज ऑल द डिटेल्स यू गोइंग टू बी टेकिंग. डेट ऑफ एडमिशन, बेड वगैरह ये सब नहीं भी लिखा तो इट्स ओके. कुछ जगह पे लिखते हैं, कुछ जगह पे नहीं लिखते. सो ये डू अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, राइट. मेरा पीपीटी शुरू हुआ, ठीक है चलेगा, मैं लगा लेता हूँ. And you guys can tell me what is wrong with it. Okay? So pay attention. तुम लोग लिख रहे होगे तो लिख लो, लिख के हो गया तो बताओ, मैं पढ़ता हूँ. हो गया. 5-year-old female, Mrs. XYZ, teacher by occupation, resident of Nagpur, upper middle class by modified Kupuswamy scale, came to OPD with chief complaints of swelling since 10 days, decreased urination since 1 month. So can anybody tell me ki can I repeat or you got it na? So what do you think is wrong with this history? Chief complaints is swelling since 10 days and decreased urination since 1 month. एक तो नेम बोला, तो चलो कुछ कॉलेज में XYZ प्रीफर करते हैं. So that can be considered okay. Next I said teacher by occupation, resident of Nagpur, upper middle class, chief complaints of. So इस लाइन में कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है? Chief complaints of
बोलते हैं चीफ कंप्लेन विद चीफ कंप्लेन ऑफ, ठीक है, प्रेजेंटेड ओपीडी विद चीफ कंप्लेन्स ऑफ. चीफ कंप्लेन बोलना होता है, एचओपीआई नहीं बोलना होता. एचओपीआई में वी स्टार्ट विद पेशेंट वाज अपेरेंटली एसिम्प्टोमेटिक, राइट. सो आई सेड रेसिडेंट ऑफ नागपुर. नागपुर कितनी जगह है, कितनी बड़ी जगह है पता है ना नागपुर में. अब नागपुर में कहाँ पे, राइट. सो यू हैव टू स्पेसिफाई खामला चौक नागपुर. सो ये पॉइंट जो है कुछ कुछ एग्जामिनर्स पकड़ लेते हैं एंड दे जस्ट डोंट अलाउ यू टू गो आफ्टर इट. सो तुम्हारा बाकी का केस छूट जाता है, राइट. सो तुमने कितना भी अच्छा लिखा हो, डोंट मेस अप विद डेमोग्राफी. ओके, सो आई सेड चीफ कंप्लेंट्स स्वेलिंग सिंस 10 days, डिक्रीज यूरिनेशन सिंस 1 month. कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, क्रोनोलॉजी गलत है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्वेलिंग 10 दिन से है, फिर मैं बोल रहा हाँ मेरे को 1 महीने पहले डिक्रीज यूरिनेशन था, ऐसा पेशेंट्स तुमको बताते हैं. बट इज इट द करेक्ट वे टू प्रेजेंट? नो. What your main goal of history is to tell the examiner, paint a picture in the head of examiner कि इसको 1 महीने पहले डिक्रीज यूरिनेशन था, 10 दिन पहले इसको स्वेलिंग आ गई एंड करेंटली शी इज प्रेजेंटेड विद सम अदर प्रॉब्लम. So you have to paint a picture. For that you have to do the chronological उसका history presentation. Always start with the oldest history. So let's say that the patient is also hypertensive since 5 years. So what will you write? गलत. Hypertension is always a past history. It is not presenting illness. It is not the chief complaint. It is the past history. पेशेंट को हुआ था पास्ट में, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सर्जरी की थी, तो वो भी बोलोगे 10 years ago सर्जरी ऑपरेट के अपेंडिक्स निकाला, सो दैट इज माई चीफ कंप्लेंट. नो, दैट इज योर प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री. सो द मेन थिंग व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड विच इज द चीफ कंप्लेंट. कंप्लेंट बहुत सारी देंगे, चीफ कौन सी है दैट यू हैव टू नो. सो इसमें क्या होगा, चीफ कंप्लेंट्स फर्स्ट डिक्रीज्ड यूरिनेशन सिंस 1 month, swelling since. Now still do you think this is right? Site of swelling. Swelling कहाँ की, पैरों की, फेस की, आर्म्स की, फिंगर्स की. बोलते हैं रिंग टाइट हो रही है मेरे को, दैट इज अ वेरी क्लासिकल फाइंडिंग की. और स्वेलिंग हैज रीच द हैंड्स, एनासार्का करके एक वर्ड होता है, दैट मीन्स जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, ग्रेड 4 इडिमा. सो स्वेलिंग की साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो. तो यू कैन से स्वेलिंग इन द लेग्स सिंस 10 days. Legs में भी you can specify swelling over the ankle, swelling over the foot. Now if she tells you okay I have swelling over this part of the foot, so what will you write in your chief complaint? Swelling over the कौन सा surface है ये, foot का, plantar और dorsum. So you will write पहला वाला chief complaint decrease urination since, and दूसरा chief complaint on the गलत. Will you ever say dorsum? Will the patient ever say dorsum? So this is the third thing. Whenever patient is telling you chief complaint, you have to write it in the words of the patient. मैंने ये गलती की थी मेरे पीडियाट्रिक्स के वाइवा में. कैसा हुआ, एक केस था 6-year-old चाइल्ड, वो एडमिट हुआ था, उसको सीजर आया था. सो आई रोट चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पेशेंट हैड अ सीजर 1 day ago. मैं गया, मुझे गाली पड़ी, सीजर बोलेगा क्या पेशेंट में, बोलेगा क्या बोला है सर, इज लाइक ऑलवेज यूज पैरोक्सिज्मल मूवमेंट. ठीक है, पैरोक्सिज्मल मूवमेंट बोलते हैं, इट इज नॉट सीजर. सो यू हैव टू कोरिलेट लेमैन्स वर्ड्स विथ योर मेडिकल डिक्शनरी. इफ समबडी सेज swelling on the feet, you don't have to write pedal edema, ठीक है, you have to write swelling over the ankle, swelling over the feet. If somebody says burning in urine, you don't write burning micturition, you write burning during urination. So always use the words in chief complaint and HOPI, always use the word of the patient. Got it? So इस हिस्ट्री में 3 अपनी प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट था रेसिडेंस नागपुर. कभी बोलोगे अगली बार से क्या बोलोगे, क्या बोलोगे तुम, फुल एड्रेस. कहाँ का, कोई पता है नागपुर का एड्रेस, किसी को पता है कोई एड्रेस? हिंगना नागपुर, दैट इज अ बिट स्पेसिफिक. नागपुर बहुत बड़ा होता है, ठीक है. सेकेंड क्या प्रॉब्लम थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. थर्ड क्या प्रॉब्लम थी, साइट. फोर्थ तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी डॉर्सम ऑफ द फुट बोल के. तो ये प्रॉब्लम्स खुद के लिए मत क्रिएट करो. Got it? So can anybody elaborate? कोई करेक्टली इसको बोल के बताएगा? I'll tell you incorrect वाली. 25-year-old female Mrs. XY dead, teacher by occupation, resident of Nagpur, upper middle class by
modified Kuppuswamy scale came to the OPD with chief complaints of swelling since 10 days, decreased urination since 1 month. फट से हाथ उठाओ, we'll get over this one क्योंकि और ऐसे 5 है. तनिषा, हाँ बैठ के बताओ. किसको पता है, किसी ने सुना है, आप बताओ. हाँ गो. 25-year-old female, Mrs. XYZ, who is a teacher by profession, a resident of Khamla, Nagpur, Yes. came to the OPD with chief complaints of decreased urination from 1 month. Yes. And swelling in the legs. Since 10 days. So this is the correct way to tell the chief complaints. So seizure के लिए क्या बोलोगे? मेरे जैसी गलती नहीं करना, ठीक है? मैंने बहुत गलतियाँ की है, ठीक है? तुम लोग वो मत करना. Okay? So this was the first case. I hope you all understand this. So for all the second years who have never taken a history, तुमको पता तो है ना बेसिक क्या रहता है हिस्ट्री वगैरह, कि नहीं पता? किसी को नहीं पता तो हाथ उठाओ. I'm a student just like you. So history में we just ask the patients तुम्हारी क्या क्या complaints है. We go in detail and we try to just analyze which system this history is pointing towards. Let's say somebody says I have chest pain that is relieved when I take a tablet which has to be kept under the floor of the under the tongue. So that is sorbitrate, that is GTN, right? So this is a characteristic of anginal pain, right? So angina is a very specific symptom for which system? CVS, right? So we just try to localize first of all which system are we targeting, and then we go ahead to see what is the etiology, what is the pathology, and what is the disease. Anatomy, system, etiology, pathology, disease. समझ गए? AEPD, ये एल्गोरिथम याद रखो. चलो नेक्स्ट केस. तुमको समझ रहा है ना? किसी को कुछ भी डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी. ओके. 5-year-old male, retired police officer, resident of Khamla Chowk, Nagpur, upper middle class, came to OPD with chief complaints of deviation of face to the right side since 1 day, inability to speak since 2 days, inability to move left half of body since 2 days, and hypertension since 5 years. बताओ क्या क्या गलती है इसमें? क्रोनोलॉजी गलत है. So we should have started with hypertension. Why? Because hypertension is always, diabetes is always, surgery is always. Very good. So hypertension चले गया. So we've got 3 complaints now. Chronology गलत है. तो first we start with oldest complaint से we start and then we go to the most fresh वाली जो complaint है उसकी जो उसने अभी लाई है. So we'll say inability to move left half of body since 2 days, inability to speak since 2 days, deviation of face to the right side since 1 day. यहाँ पे एक problem हो सकती है. How many chief complaints have you written? Whenever you are writing a case, limit your chief complaints. In a CNS case like this is a stroke. In a CNS case like this, it is okay to have 3 chief complaints. These are the only 3 chief complaints most of the times you have to write. But most of the other cases, just stick to 1 or maximum 2 chief complaints. 1 या 2 में रहो. I'll tell you why. Because after chief complaints comes what? HOPI, history of present illness. तो अगर मैंने बोला patient came with blah 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 and उसको vomiting हुई है 1 दिन से. In HOPI, I will describe what was the exact nature of vomiting. कितने बार हुई, कितने क्वांटिटी में हुई, वॉमिटस में क्या था, बाइल था क्या, ब्लड था क्या, इनडाइजेस्टेड फूड था, एसिड था, क्या था, उसके साथ उसको पेन हुआ क्या, पेन कहाँ रेडिएट हुआ, समझ रहे हो? सो आई एम डिस्क्राइबिंग द चीफ कंप्लेन इन डिटेल. Why is this important? Why is HOPI important? Because HOPI will help you narrow down the anatomy and etiology of the disease. अगर मैंने बोला वॉमिटिंग हुई है, आ जाओ, इफ आई से वॉमिटिंग हुई है, 1 दिन की हिस्ट्री है, वॉमिटिंग कंटेन्स फ्रेश ब्लड, द वॉमिटिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पेन एंड इट इज नॉन प्रोजेक्टाइल इन नेचर, आई एम ऑटोमेटिकली थिंकिंग ऑफ अ फ्रेश इसोफेजियल वेराइसिस that could have happened due to alcoholism, chronic alcoholism की अगर हिस्ट्री है तो, right? If I say it contains undigested food, I am thinking of probably gastric outlet obstruction or intestinal obstruction or let's say indigestion. तुम लोग को तो हुआ ही होगा, उल्टी करते वक्त कुछ फूड के पार्टिकल्स निकले होंगे, बहुत एसिड निकला, व्हाट इज इट? एसिडिटी हो सकती है उसको, इट कुड बी ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है. So in HOPI,
वी आर ट्राइंग टू टेल द एग्जामिनर कि ये हुआ था, सो दैट आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू द डायग्नोसिस. वॉमिटिंग बोलने से, वॉमिटिंग विद फूड, वॉमिटिंग विद बाइल अलग है. वॉमिटिंग विद बाइल इज डिस्टल डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन में वॉमिटिंग विद बाइल आएगा, क्योंकि वेयर डज द एम्पल ऑफ वेटर ओपन, इन विच पार्ट ऑफ डिओडेनम? एग्जैक्टली राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम. समझ रहे हैं ना सब? हाँ बोलो एक बार, अरे जोर से बोलो. वेरी गुड. सो दिस वॉज द केस नंबर 2. तो इसमें क्या था? क्रोनोलॉजी एंड टू मेनी चीफ कंप्लेंट्स. तुम पहले बताओगे इनएबिलिटी टू मूव लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी, उसको तुम पहले बताओगे. हाँ, पहले वो बैठा था, फिर उसको लेफ्ट हाफ नहीं मूव चालू हुआ, पहले उसका हाथ नहीं मूव हो रहा, फिर शोल्डर नहीं मूव हो रहा, फिर पैर नहीं मूव हो रहा, फिर हिप नहीं मूव हो रहा. देन यू विल से इट वाज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव या सडनली प्रोग्रेसिव या इंसिडियस इन ऑनसेट. सो यू हैव टू टेल ऑल ऑफ दैट अंदर. फिर देन यू विल मूव टू इनएबिलिटी टू स्पीक. सो विल देन डिस्क्राइब ही वाज एबल टू फॉलो कमांड्स बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली. उसको मोटर अफेजिया टाइप हो रहा था. यू गॉट इट? समझ रहा है? We'll get to HOPI more in detail when we discuss the individual cases. जैसे ये अभी तुमको नहीं समझ रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मोटर अफेजिया whatever, ठीक है. So when we discuss CNS, we will be taking a very detailed look into this exact case. This is a stroke case. 65-year-old male, hypertension की history, diabetes की history, comes with chief complaints of hemiplegia. एक साइड की बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, हेमीपैरेसिस थोड़ी बहुत कर पा रही है. ओके, यू गॉट इट. तो मुझे बताओ, हैव यू एवर सीन अ स्ट्रोक पेशेंट? तुम्हारे घर पे, तुम्हारे रिलेटिव्स में कभी देखा है? तो यू नो व्हाट द कंप्लेन इज, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द, कौन सा नंबर का केस? थर्ड. अ 65-year-old मेल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सेम ऊपर होगा. और हाइपरटेंशन आई हैव रिमूव्ड क्योंकि दैट इज अ पास्ट हिस्ट्री. HOPI. Patient was apparently asymptomatic. Whenever you start HOPI, you have to start with patient was apparently asymptomatic. तब तक वो healthy था, and now the disease has started. And then when you describe systematically its symptom, that is the natural history of the disease. What do you mean by natural history? 8वें दिन पे फीवर आया, 10वें दिन पे रैश आई, 12वें दिन पे स्पॉट्स आए, मीजल्स. समझ रहे? So this is the progression of the disease, natural history, how it affects the body. Got it? HOPI सुनो इसका. The patient was apparently asymptomatic 2 days ago when he developed hemiparesis of the left half of the body, which was sudden in onset, rapidly progressive. He also developed facial nerve palsy of the right side, was not able to move the right half of the face. Along with it, he also had motor aphasia, due to which he could not speak fluently. क्या मिस्टेक है? कुछ है मिस्टेक? पहले ये बताओ, कितने लोग को लगता है मिस्टेक? हाँ बोलो. फेशियल नर्व पाल्सी बोला, और सबको फेशियल नर्व ही लग रहा है. मोटर अफेजिया बोला, और हेमीपैरेसिस बोला. सो व्हाट आर दीज? दीज आर मेडिकल साइंटिफिक टर्म्स. शुड वी यूज इट इन HOPI? व्हाट डू वी यूज? लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट. सो इंस्टेड ऑफ हेमीपैरेसिस व्हाट शुड आई हैव सेड? वीकनेस. जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो. हेमीपैरेसिस का तुमको बोलना होता है वीकनेस, हेमीप्लेजिया का बोलना होता है वीकनेस. बाय द वे, हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया ये होता है कि whenever you have a lesion in the brain, what happens is that that part, that organ, which is that limb which is affected, of course will not be able to derive its normal activity. Power उसका कम हो जाएगा अगर वो वाला part affect हो गया. तो let's say I have a stroke here, then let's say my hand and my leg will be gone. क्योंकि उतने neurons चले गए. Neurons are dead, they don't regenerate. So that is the first thing. I should have said weakness. I described the weakness normally, okay, it was insidious, sudden in onset, rapidly progressive. So then I should have described the progression. What is the progression of the weakness? कहाँ से कहाँ पे weakness गया? तो patient बोलेगा कि मैं ग्लास पकड़ रहा था और फिर सबसे पहले मेरा हुआ ग्लास छूट गया. Distal muscle weakness. Distal muscle समझता है ना? Proximal है ना, which is very closer to your midline. Distal is which is far apart from your midline. Okay, so first you'll say distal muscle weakness. Then within 2 hours, I was not able to lift my arms up. I was not able to lift my arms up. So shoulders गए, deltoids गए, serratus anterior गई, supraspinatus. All of these are what? Proximal muscles of upper limb. So the progression is initially patient was not able to, let's say, pick up objects, pick up a glass, drink तो proximal muscle हो गया, this is flexing. So pick up objects, ठीक है, right from his hand. Then it progressed that patient was unable to comb his hair. Proximal muscles use हुई. Comb his hair, scratch his head,
whatever you want to say, wherever proximal muscles involved. Why? Because I just cannot say proximal first, distal later. Why? Because it is the scientific medical language. Do we say this? No, bolo na, no. No. Then I should have said it was also involving the lower limb. In lower limb, patient says, मैं स्लीपर नहीं पहन पा रहा, मैं स्लीपर नहीं पहन पा रहा. डिस्टल मसल वीकनेस, क्योंकि तुम टोज को विगल करके जाते हो. स्लीपर पहने किसी ने कभी लाइफ में, तो यू विगल द टोज एंड तुम्हारा फिर स्लीपर में पैर जाता है. एंड देन व्हाट, व्हेन यू स्क्वाट, कोई टॉयलेट में जाता है इंडियन वाले, दे स्क्वाट, दे राइज अप. ही वाज नॉट एबल टू राइज अप. He was not able to rise from a chair. He was not able to get up from the bed. Why? Hip ke proximal muscles are gone. He was not able to stand up. Why? Because vastus, medialis, lateralis, intermedius. You might be knowing this quadriceps. They are gone. So I should have described it in this way. Then I should have particularly also mentioned upper limb pehle aaya, lower limb pehle aaya. Kaun sa pehle aaya? It depends. Upper limb pehle aaya. So this is how we have to describe. Not left hemiparesis, proximal first, distal later. That would be incorrect. If you say that, you will be kicked out. Okay, so that was my mistake. Next, I said he also developed facial nerve palsy, was not able to move. Patient बताएगा facial nerve है. Patient को पता है facial nerve है उसके पास. He is not aware. He is not aware that there is a nerve called as facial nerve. What he will say? Whenever I was drinking, some water was dribbling. Saliva was getting collected. When I was smiling, this part which is affected was not able to smile. ऐसे ऐसे गाओ, एक part affect हो गया ऐसे. When I was trying to blink, this eye was rolling upwards, क्योंकि ये eyelid कौन control करता है? Orbicularis oculi. What is the muscle? Which is the innervation? Facial nerve, right? So this is also affected. So this is a classical case of facial nerve palsy. So how will you describe? Patient said that angle of mouth लिख सकते हो because उसको और कुछ way नहीं है. Angle of mouth was deviating to the right side because there was facial nerve palsy. But facial nerve palsy मत बोलना. You can also write dribbling of saliva was present, but he could not blow or whistle because you need competence of the buccinator muscle for that. Again supplied by facial nerve. Does anybody know the branches of facial nerve? बताओ. एक कोई भी बताओ. Temporal branch. Mandibular. Marginal mandibular रहती है ना, I think. Buccal. Upper lower buccal और cervical. Cervical supplies platysma. ठीक है. Pre to the stylomastoid foramen, before the stylomastoid foramen, in the ear, chorda tympani, very important branch. Why? Taste, anterior 2/3 of the tongue is the taste which is supplied by special visceral efferent. That is what? Chorda tympani. ये सब बेसिक एनाटॉमी है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, तुमको पता होगा ऑलरेडी सब. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड नॉट मेक. पहले वाले केस में क्या मिस्टेक थी? रेसिडेंट ऑफ नागपुर. क्या बोलना चाहिए था? स्पेसिफिक खामला नागपुर. और स्वेलिंग सिंस 10 days. क्या बोलना था? साइट. और पहले तुमको बोलना चाहिए था डिक्रीज यूरिनेशन. नेक्स्ट 4 चीफ कंप्लेन दे दी. हाइपरटेंशन पास्ट हिस्ट्री में चीफ कंप्लेन में ला दिया. दैट्स नॉट करेक्ट. नेक्स्ट केस नंबर 3 में डिस्क्राइबिंग इन साइंटिफिक टर्म्स, दैट इज इनकरेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड HOPI कैसे फॉर्म करना है. नाउ दिस वाज द HOPI ऑफ स्ट्रोक. अगेन वी आर गोइंग टू बी लर्निंग इन डिटेल. This is just an example. You might not have understood a word I've said scientifically because you don't know what stroke is, you don't know what the connections of the brain. We'll be covering everything what I just talked about in individual diseases. I could have taken the example of anemia, splenomegaly, whatever. So chief complaint, splenomegaly में क्या chief complaint होगी? Something growing in the abdomen, fullness in the abdomen, mass in the abdomen, lump in the abdomen. That will be complaint of splenomegaly. HOPI करेगा. First notice on the left side, gradually progressing towards the center near the umbilicus. It is painless, may be painful. In painful क्या हो सकता है? Tropical splenomegaly हो सकता है, malaria हो सकता है, splenic infarct हो सकता है. It could be so many things, right? Understood? Let's move on to the next case. So, does anybody know what comes after our HOPI? History of present illness बता दिया. ठीक है, बता दिया वो पूरा. Past history. Are you sure? Negative history. Very good, very good. Negative history. So my teacher always used to say negative history should be as elaborate as your HOPI. Why? Because in negative history you are trying to rule out 2 things. First, differential diagnosis. What do you mean by differential diagnosis? Let's say I say
कफ है, कफ में स्पूटम में ब्लड है. So what are you thinking? You can be thinking of pulmonary edema. You can be thinking of infective causes like TB. You can be thinking of pneumonia. You could be thinking of something else entirely. So these are my differentials. मैंने क्या बताया तुमको? कफ विथ ब्लड. अब उसके बहुत सारे causes है. Now if it is associated with evening rise of fever, that is tuberculosis. Let's say evening rise of fever is not present. Patient is from a well-off family. He is not living in a small background. TB is most likely erased. Most likely, 100% नहीं. So it is most likely. Next, you are thinking of non-cardiogenic pulmonary edema or cardiogenic pulmonary edema. So you can write no history of toxin inhalation. Toxin से pulmonary surfactant affect होता है, surfactant affect होता है, lungs में पानी भरता है, and क्या होता है? Pulmonary edema. किसी का heart fail हो गया, let's say due to mitral stenosis, what happens? Back pressure to the lungs. Lungs में back pressure हुआ, capillaries dilate हुई, capillaries dilate, fluid leaked out in the lungs, and what happened? Pulmonary edema. So let's say you say frothy sputum is not present, that rules out pulmonary edema. Let's say you say fever was present, infective causes की एक तुमको मिल गई है, it could be pneumonia. Got it? So what is this negative history? No history of. What is this helping me do? It is helping me narrow down my differential diagnosis so that I reach to, let's say, 2 diagnoses, 3 diagnoses at max. So your negative history should be as elaborate as your HOP. This is something very very important. लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने खुद से देखा है, they write HOPI इतना बड़ा, इतना लिखना ही पड़ता है सबको, and then there are negative इतना सा. So इतने में your differentials are not covered. Let's say patient has diarrhea, which is specifically containing blood. There are so many causes, cancers, infections, tumors, trauma, कुछ भी हो सकता है. So in negative you have to rule this out systematically, okay? And only then will you be able to come to a 3-4 differentials बनेंगे. So negative should be as elaborate as. Second thing in negative history which we are trying to rule out is complications of the disease. What do you mean by complications? Let's say that a person has tuberculosis. ठीक है, अपने history में था evening rise of fever is present, cough with sputum is present, and sputum is blood tinged. Patient is belonging from a poor background. He is a manual laborer. एक कमरे में रहता है, उसके भाई को भी tuberculosis है, वो उसके घर में रहता है. लग रहा है TB जैसा, बहुत पतला है. So this is like a TB case. Now, what are the complications of tuberculosis? Does anybody know? Arya? Disseminated tuberculosis. That is one thing she said. किसी ने TB पढ़ा होगा माइक्रो में, सेकेंड ईयर्स जिनका हो गया सेकेंड ईयर. ट्यूबरकुलोसिस के कोई कॉम्प्लिकेशन? इधर जाता है ट्यूबरकुलोसिस? मेनिंजाइटिस होता है, TB मेनिंजाइटिस वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया. TB मेनिंजाइटिस इज एक्सट्रीमली कॉमन इन इंडिया. ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ज़्यादा TB मेनिंजाइटिस भी मिल सकता है तुमको. Where else does TB go? In intestine, in lungs, in lymph nodes. What do we get? Cold abscess बोलते हैं ना. And then what else do we get? Scrofula सुना है? Scrofula is when the cold abscess leaks out, the fistula is formed. ठीक है, so that is scrofula. So you will get swellings in the neck. You will get history of diarrhea. You will get history of blood in the stool if it is spread to GIT. If it is spread to the CNS, you will get signs of meningeal irritation. आपको पता है meningeal irritation क्या होता है? Meninges पता है? Dura mater. So whenever there is something which is irritating the meninges, most particularly infections like bacterial meningitis, viral meningitis, tubercular meningitis, cryptococcal meningitis or whatever, what will happen is that the meninges will not allow movement. So neck तुम्हारी stiff हो जाएगी. तुम ऐसे भी करोगे ना, तुमको दर्द होने लग जाएगा. That I have seen. And you कितना भी force लगा, you won't be able to flex the neck downwards. Why? Nocal rigidity आ जाती है. You know nocal ligament रहता है एक. You might be aware यहाँ पे पीछे रहता है. So nocal rigidity is one of the signs of meningeal irritation. Got it? So this is what you will get in TB. So these are all the complications of tuberculosis. So in your negative history, you should write no history of knuckle stiffness, or you can write no history of neck stiffness. You can write no history of projectile vomiting. You can write no history of blood in stools. So this is ruling out my complications of tuberculosis. If these are present, it could first of all be that disease has been complicated. Secondly, it could be an entirely new disease apart from your differentials. कई बार ऐसा होता है चीफ कंप्लेन कुछ और रहती है एंड तुम्हारी एंड पे डिसीज कुछ और ही निकलती है, क्योंकि चीफ कंप्लेन माइट बी लीडिंग यू टू अनदर वेरी बिनाइन कॉज, बट अंडरलाइंग व्हेन यू स्टार्ट टू एग्जामिन you see something else entirely. Okay, let's say that a female comes to you with lump in breast. Okay, you do the mammography, it comes out as कौन सा स्कोर रहता है? बायराइड स्कोर.
तो इट सेज दैट इट इज बिनाइन, लेट्स से इट इज अ फाइब्रोइडिनोमा, ठीक है, सब सही है. बट यू ऑल्सो एग्जामिन, यू सी द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर फोसा हैज फुलनेस, ब्रेस्ट लम्ब राइट में है, सॉरी ब्रेस्ट लम्ब लेफ्ट में है, राइट साइड का सुप्राक्लेविकुलर फोसा इज फुल. इट कुड लीड यू टू समथिंग मैलिग्नेंट इन GIT, क्योंकि GIT का lymph node drains into the supraclavicular fossa, ठीक है. सो राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे ड्रेन होता है. लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर इज विर्चॉज नोड, ठीक है, ट्रॉसियर्स साइन आई थिंक, ठीक है. सो ऐसा होता है, चीफ कंप्लेंट कुछ और, डिसीज कुछ और, ये रियल लाइफ में होता है. तुम्हारे जो वार्ड में केसेस रहेंगे उनके साथ ऐसा नहीं होगा. गॉट इट? सबको समझ रहा है? ओके, सो लेट अस सी द केस. वही है सेम, 65-year-old ऐसा वैसा. एंड नेगेटिव हिस्ट्री में आई हैव रिटन नो फीवर, नो हेडेक, नो पैल्पिटेशंस. कुछ गलत है? नहीं, 3 ही लिखे ना मैंने, 3 ही नेगेटिव हिस्ट्री लिखा मैंने स्ट्रोक के केस में. सो दैट इज नॉट टू बी डन, इट शुड बी वेरी इलैबोरेट. सो आई हैव रिटन डाउन 65-year-old मेल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, कामला चौक, इनएबिलिटी टू मूव, स्पीक एंड डेविएशन ऑफ फेस, HOPI लिखा. नेगेटिव हिस्ट्री नो फीवर, नो हेडेक, नो पैल्पिटेशंस. इसमें नेगेटिव हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट. दिस इज द मिस्टेक हियर. नेक्स्ट इज I said past history, patient is hypertensive since 5 years. Do you think this is right? Past history specifically. Negative के बाद past आता है by the way. So negative के बाद you get to see past history. Past history में अभी अपन ने एक example discuss किया. What was that? Hypertension. Right? बोलो ना, hypertension. Right. So do you think I have written this down? Patient has hypertension since 5 years. Is this the correct way? मतलब किसको लगता है सही है? अपन लिख देते हैं ना, पेशेंट इज हाइपरटेंसिव सिंस 5 years. और डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? जिसको करेक्ट लगता है ऊपर लाओ, तो बाकी सबको नहीं लगता. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड? कुछ ऐड करना है? ट्रू, एग्जैक्टली. इज द हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड बाय मेडिकेशंस? व्हाई? कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में चेंज हो जाएगी पूरी डिसीज, ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्रग, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीज, ड्यूरेशन, ड्रग, 3 D याद रखना है. डिसीज हाइपरटेंशन, ड्यूरेशन 5 year, ड्रग कंट्रोल ऑन amlodipine 5 mg. Got it? Always remember when you are writing a past history and you mention a disease, you also say that it is controlled by medication. The next thing examiners will ask you, what medication was the person having? He will ask you, अच्छा तुमने बता दिया, हाँ, let's say he is a case of prostate, you say Urimax पे control है, that is tamsulosin, you might be aware. पता है tamsulosin? Alpha 1B 1D blocker, ठीक है, specifically dilates the urethral part of the prostate. Okay, so he will ask you the dose. So all of this you have to take the history from the patient, ask them कि मुझे दिखाओ तुम्हारे गोली का पर्ची, and उसमें लिखा रहता है सब. वो गोली लेके घूमते because they have to take it every day. So if they are admitted here, they'll probably be taking their hypertension, thyroid, BP की गोली जो भी है, sugar की गोली, they will be probably taking. Got it? Name a few chronic diseases which could be present as past history. बताओ आप. हाँ बताओ. एक तो बताया मैंने, वो बता दो. हाइपरटेंशन, थायराइड, ठीक है, डायबिटीज और एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है. बट COPD, सिग्निफिकेंट COPD, क्योंकि COPD लंग को खराब कर देता है. दैट मीन्स पेशेंट इज मोर प्रोन फॉर लंग इन्फेक्शंस, तो इट इज सिग्निफिकेंट. और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, स्टेरॉइड कंजम्पशन, करेक्ट. स्टेरॉइड से बहुत कुछ टॉक्सिसिटी हुई. आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी, राइट. सो दीज आर ऑल द रेलेवेंट सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री. 4 things you should always ask to Indian population. DM, कितने लोग के घर पे, जो तुम जिस घर में तुम रहते हो उस घर में कितने लोग को आइदर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है? हाथ उठाओ. देखो देखो अराउंड, देखो तुम्हारे घर के अराउंड. सो आई थिंक ओनली 1 person हैज नॉट रेज्ड हर हैंड. अच्छा, तो वो भी रेज किया है, तुमने नहीं किया. सो यू सी द नंबर ऑफ पीपल who are affected with diabetes and hypertension, ये 2 ही डिसीजेस से पूरा क्लास भर गया. सो ऑलवेज इन पास्ट हिस्ट्री, फर्स्ट आपको शुगर है क्या, ये नहीं पूछना. आपको डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 है क्या, नहीं पूछना. ये व्हाट यू हैव टू आस्क, आपको शुगर की बीमारी है क्या. मराठी में पूछना, क्या बोलते हो रे मराठी में उसको, ठीक है, व्हाटएवर. बीपी के लिए क्या पूछोगे, आपको हाइपरटेंशन है क्या, आपको सिस्टमिक हाइपरटेंशन है क्या, कि आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, कि आपको वीनस हाइपरटेंशन है, कि क्या है. व्हाट डू यू आस्क, बीपी की तकलीफ है क्या, बीपी की गोली खा रहे हो क्या. दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क. अस्थमा, दमे की बीमारी है क्या,
ये पूछना है। अस्थमा डायरेक्टली बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता। आजी भाई आएगी 60 ईयर्स की, क्या रहता अस्थमा उसको भी नहीं पता। दमा, हाँ दमा था, अस्थमा नहीं था। मेरे को बोला है ऐसा, मेरे को पेशेंट्स ने बोला है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस। वी आर वेरी लकी टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड. We don't have such living conditions which 80% of Indian people are currently going through. एक घर होता है हार्डली इतना बड़ा, उस घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, वहीं पे बेडरूम, वहीं पे किचन, वहीं बाजू में बाथरूम, सब लोग वहीं पे जा रहे हैं, छोटा बच्चा खेल रहा है, माल नरिशमेंट है, एक इंसान है लेबरर, वो काम कर रहा है, बाई जो है काम किसी के घर पे झाड़ू पोछा लगाया जा रही है. दिस इज पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, वेरी कॉमन. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, दैट you belong to such a good community that by default you are not exposed to TB. समझ रहे हो? So exposed तो हुए होगे बट तुमको हुआ नहीं because your immunity is good. Okay? सबके एक्सरे में देखोगे तो छोटा मोटा गॉन्स कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, फोकस नहीं दिखेगा, कॉम्प्लेक्स जरूर दिखेगा, ठीक है. सो दैट इज द मेन डील कि यू हैव टू आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ओके. फोर्थ, अस्थमा. अस्थमा क्यों? क्योंकि देर आर वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स used for heart conditions, used for lowering the BP, which can lead to asthma. Name that drug. Salbutamol is against asthma. Exactly उसका opposite. Beta agonist है salbutamol. Beta antagonist, beta blockers are contraindicated in asthmatics. Why? किसी को कोई idea? Bronchoconstriction. So bronchi are these small tubes inside your lungs. In asthma, they contract. There are beta receptors present all over them which help them dilate. When you give beta blocker, you prevent it from dilating. Why are you giving beta blocker? To protect the heart. Heart also has beta 1 receptors. When you give beta blocker, beta 1 is enacted upon, beta 1 is blocked, heart rate decreases. It is negatively inotropic, chronotropic, bromotropic. समझ रहे हो ना, ये सब चीजें पता है ना? You have heard these terms, right? So very important, asthma. ठीक है. Then you ask past surgical history. पता है क्या, तुम पूछते हो सर्जिकल हिस्ट्री, दे सेड कभी सर्जरी नहीं हुई, फिर पूछना कभी एबॉर्शन हुआ है क्या, दिल सेड यस एबॉर्शन हुआ है फीमेल्स में ऑब्वियसली. देन यू से अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है. सो व्हेन यू आस्क देम कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, नहीं. व्हेन यू स्पेसिफाई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है क्या, 65 ईयर का ओल्ड का बुढ़ा है वहाँ पे, दे ही विल से यस, राइट साइड का हर्निया ऑपरेट किया था 5 साल पहले. सो देर आर फ्यू कॉमन ऑपरेशंस दैट यू शुड नो विच इज वेरी कॉमन. सो लाइक आई सेड अपेंडिसाइटिस वेरी कॉमन इन यंग बॉयज. 30 ईयर्स पहले उसका अपेंडिक्स निकाला होगा, अभी वो तुम्हारे पास कोई और कंप्लेन के लिए आया, सो यू हैव टू मेंशन दैट इन योर प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री. Abortions are very very important. Why? Because cause of abortion can be due to a medical reason. You understand? There are several causes we have to take out the baby. So medical causes are very very important. Let's say the patient is suffering from SLE and she also has history of abortion. You are automatically thinking that it is anti-phospholipid antibody syndrome. एक चीज होती है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोरिलेशन करना होता है. You got it? So in short, SLE is a disease where so many antibodies are produced against your own cell nuclear components, anti-dsDNA, anti-centromere, anti-RNA. All of these are antibodies against your own cell's DNA. A special type of antibody, anti-phospholipid antibody, is also present. Cardiolipin antibody, if you have heard about syphilis, so anti-cardiolipin antibody is present, which leads to degeneration of placenta in the first trimester, that leads to recurrent first trimester abortions. Gynec obs में पढ़ोगे, that is APLA syndrome, anti-phospholipid antibody syndrome. So in a patient of SLE, very important to think about abortions. समझ गए? So quickly, first अब क्या पूछोगे पेशेंट को? Hi. First क्या पूछोगे? First, starting from हाँ, demography. Next. Then Chief complaints. HOPI. Negative history. Past history. Past surgical history. Drug history. So अभी तक हमने past history तक डिस्कस, past में past medical, past surgical. इसके बाद depending on your case, you either have to go to menstrual history, you either have to go to family history or nutritional and personal history. What I personally like to do is immediately after that, if a patient is suffering from, let's say, a GIT condition, I go to his personal history. What does personal history include? एक हो गया addictions और
allergies, diet, bowel and bladder. So you always have to say bowel and bladder habits are regular / normal. अब external पूछेगा normal bowel habit क्या होती है? So according to the patient, the regularity of his bowel is present. ज़्यादा उसको जाना नहीं पड़ रहा है, कम नहीं जाना पड़ रहा है, it is maintained. Same with bladder. फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब मल्टीपल टाइम से जाना पड़ रहा, अर्जेंसी नहीं है, दैट मीन्स तुरंत उसको जाना ही पड़ेगा वरना कपड़े सॉइल हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ दीज कंप्लेंट्स आर नॉट प्रेजेंट. सो दिस इज व्हाट पर्सनल हिस्ट्री में वी गेट फर्स्ट बावल एंड ब्लैडर. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. किसी को बोर हो रहा है क्या? मुझे फ्रैंकली बताओ, मैं चेंज कर दूंगा टीचिंग स्टाइल. तुम्हें हो रहा है बोर? पक्का लिख नहीं रहा तो कुछ वाह छुपा के लिख रहा. ठीक है. सो bowel and bladder. Second, somebody said addictions. So what are the addictions that you know of? Wow, smoking or tobacco, alcohol or drugs. कौन से drugs? Cocaine, okay, और LSD और बताओ यार, बस इतनी. ब्रेकिंग बैड नहीं देखा? मैथएम्फेटामिन. ठीक है. कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं ड्रग्स जैसे, पता है तुम्हें? मिलेंगे तुम्हें पेशेंट्स तो पता चलेगा. सो उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर दवाई से उनको बहुत ही बेनिफिट होगा, तो खाते रहते दे लैंड इनटू नेफ्रोपैथी बिकॉज ड्रग्स आर वेरी टॉक्सिक टू योर किडनीज, बिकॉज किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट होने वाले. गॉट इट? सो व्हाट यू हैव टू आस्क स्पेसिफिकली इज व्हाट आर यू कंज्यूमिंग. तुम दारू पीते हो क्या? स्ट्रेट अवे आस्क. स्टार्टिंग में डर लगता पूछने को, बट यू हैव टू आस्क तुम दारू पीते हो क्या? पीते हो तो फिर क्या क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट? हाँ, तुम पीते हो क्या? कितना पीते हो? 50 to 60. क्या? लीटर? ml? अच्छा, तो 50 to 60 ml कितने बार पर डे? 3 बार पीते. कितने दिन से पिया? 10 साल से पिया. हर रोज पिया कि बीच में ब्रेक लिया? हर रोज. उससे कुछ डिसीज हुई? लीवर में दिक्कत आई? पेट कभी फूला? पानी भरा? कभी ऑपरेशन करना पड़ा? कुछ सुई से निकाले पानी? सो दिस इज हाउ यू टेक द हिस्ट्री फॉर alcoholism. This is a chronic alcoholic case. Okay, 10 years से history है consumption of alcohol. So whenever you take alcohol history, you have to mention what type of alcohol is he consuming. Is he consuming beer, which has the lowest amount of alcohol concentration? You might be aware. Next, is he consuming scotch, vodka, wine, whatever. Vodka में I think highest होता है 80% के अराउंड, 60 to 80% लिखा है किताबों में. So अगर उसने let's say 300 ml बियर लिया वर्सेस उसने एक शॉट वॉडका लिया, सेम ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया वॉडका का एक्चुअली. सो अगर वो वॉडका हर रोज पी रहा है, सो मोर अल्कोहल इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू हिज बॉडी, दैट इज वेरी वेरी डिलेटेरियस फॉर हिज हेल्थ. वर्सेस बियर पी रहा है, उतना कुछ नहीं होगा, उतना कुछ नहीं होगा, बट गिवन टाइम एवरीथिंग विल हैपन. सो यू हैव टू टेक हिस्ट्री. कितने साल पिया, कितना ml पिया, हर रोज पिया कि ओकेजनली पिया, कभी गिल्ट में आके छोड़ा क्या, और कभी रीस्टार्ट क्या. तो ऑब्वियसली रीस्टार्ट तो किया ही होता है. ठीक है, इसलिए वो पढ़ा है बोर्ड में. नेक्स्ट यू गेट योर स्मोकिंग. स्मोकिंग में वी हैव क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस टू डिफाइन व्हाट अमाउंट ऑफ स्मोकिंग विल कॉज व्हाट डिसीज. समझा मैंने क्या बोला? अगर तुमने दिन में 10 सिगरेट पी वर्सेस तुमने दिन में 30 सिगरेट पी, डिफरेंस आएगा पक्का. सो स्टडीज हैव फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू आर कंज्यूमिंग पर डे एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिसीजेस यू आर एक्सपोज्ड टू. So we have got 2 index for that. We've got smoking years, SY, and then we got pack index. So what is pack index? He says I consume 1 packet of cigarettes for 10 years. 1 into 10 equals to 100 नहीं रहता है, 10 रहता है. 1 into 10 is 10. So that is 10 pack years. Any pack year more than 35, you can also consider 30, क्योंकि Indians have very bad vessels by law. Our genetics are made so that our vessels are not that good compared to other countries. So in India, you know, smoking is a disease of the lungs and the vessels. It is a disease of the vessels. Atherosclerosis, बहुत सारी चीजें. It affects the vessels. Brain में stroke होगा, heart में coronary artery disease. These are all vessels. Okay. So Burgers होगा exactly. PVD होता है, right? Atherosclerosis होता है. So it is a disease of the vessels. ठीक है? क्या बोल रहा था? हाँ, पैक ईयर्स होता है. एंड सेकेंड इज स्मोकिंग इंडेक्स. मैंने 10 सिगरेट पी 10 साल तक, स्मोकिंग इंडेक्स 10 into 10 कितना? 100, राइट? सो स्मोकिंग इंडेक्स ऐसा कहते हैं, इट इज मोर देन 300, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर
cancers, for Burgess disease, for atherosclerosis, for many other diseases. So in smoking, you just have to say patient is a chronic smoker since 10 years and his smoking index is 300. Why am I not telling कि he smokes 30 cigarettes per day since 10 years, hence his smoking index is 300? You don't say that. Why? Because you want the external to ask you another question. How did you calculate? You say 30 पिया, 10 साल तक पिया, 300 आया. How is it significant? 300 के ऊपर है, ये सब होता है. You get it? समझ रहा है सबको? Next is drugs. तो to be very honest, हाँ, स्मोकिंग इंडेक्स में इफ इज 30 सिगरेट्स पर डे 30, 1 घंटे की 2 ऑलमोस्ट, तो उसको 10 साल तक की किया उसने ऐसा. सो ये स्मोकिंग इंडेक्स इज 30 into 10 नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे टाइम्स टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इन ईयर्स, दैट इज योर स्मोकिंग ईयर्स. ठीक है, स्मोकिंग ईयर्स दूसरा हो गया ये, नहीं दिस इज स्मोकिंग, वो पैक वाला, पैक जिसमें पैक यूज होता है वो पैक है. ऑलराइट, सो बॉयल ब्लैडर हो गया, स्मोकिंग एंड अल्कोहल हो गया, एडिक्शंस. टू बी ऑनेस्ट आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ केस हिस्ट्रीज इन जीएमसी, बट ओनली वन केस टोल्ड मी दैट ही एक्चुअली हैज डन सम ड्रग्स. ही टोल्ड मी उसने सारे टाइप के ड्रग किए. ही सेड मैंने गांजा भी किया है, मैंने बाकी के जो भी है मुझे तो पता भी नहीं. तो उसने बोला मैंने सब किया भाई. मैं कब किया? 10-20 साल पहले किया. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गैंग्रीन, उसका ये टो कट चुका था और ये टो में पूरा एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट थी. एम्पुटेशन करने वाले थे, उसका पीवीडी का केस था, सर्जरी वार्ड में था. His age was just 42. Smoking damaged all his vessels. He was looking like 65-year-old. Smoking is very bad. Don't do it. ठीक है, वैसे भी वो लंग्स में जा रहा है, पेट में तो जा नहीं रहा. पेट में जाएगा तो कैंसर कॉज होगा. एनीवेज, सो चलो लेट्स स्टार्ट. पहले तुमने क्या पूछा पेशेंट को? सबसे पहले डेमोग्राफी. उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री. समझ गया इतना? इसके बाद यू गो टू फैमिली हिस्ट्री. हाँ, पर्सनल हिस्ट्री में यू ऑल्सो हैव टू मेंशन अबाउट डाइट. Diet is more significant in pediatric diseases. And one special question I would like you all to remember over here regarding diet is in CNS it is very important to take dietary history. Why? Because have you heard about this term vegan? क्या होता है vegan? Anybody? Dairy products and animals, non-veg. So what do they eat? घास फूस. ठीक है, only plant derived things. Only plant derived things. Now, do you know vitamins? कौन से विटामिन पता है? बताओ. फर्स्ट A. ठीक है, D, C, E, K और B. बताओ, नाम से बताओ. B1, B2, B3, B4. B4 रहता नहीं है. B5 पैंटोथेनिक एसिड. B6 पायरोडॉक्सिन. B7 बायोटिन. B9 folate. B12 tell me what are the sources of folate? Veg. folate is foliage. मतलब तुम ग्रीन लीव्स खाओगे तुमको फोलेट मिलेगा. स्पिनच, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. टेल मी व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ कोबालामीन? Animal derived. Are there any plant-based sources for cobalamin? That is the main issue here. In a vegan diet, you lack B12. A, D, E के fat soluble vitamin. D तो तुम्हारी बॉडी बना रही है. A you are getting normally from carrots, जो कुछ भी तुम खा रहे हो. C you are getting again. C is very abundantly present in all our foods, right? Citrus fruits, नींबू पानी पी लिया, C मिल गया दिन भर का. Do you know all animals can synthesize their own vitamin C? We can't. एक एंजाइम है which is lacking in our body. I think it is L-gulonolactone oxidase. I think that is the name of the enzyme. That enzyme if given, our body will be naturally capable of synthesizing vitamin C. कभी देखा तुमने गाय को वो जाके संतरा खा रही है? नहीं ना, बट उसको स्कर्वी तो नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because उसकी बॉडी खुद विटामिन सी सिंथेसाइज कर सकती है. We can't. That's a very bad thing for us. Therefore we need to take 30 mg vitamin C almost every day. लिम्सी कौन खाता है? इट्स अ गोली है, तुम खाते हो. वेरी गुड.
एनीवे, सो विटामिन B12 का CNS से कोई कनेक्शन याद आ रहा क्या किसी को? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो. हाँ हाँ हाँ, बताओ. डीमाइलिनेशन होगा क्या? सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, SACD, सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसमें क्या होगा? इट इज अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ गेट अटेक्सिया. गेट अटेक्सिया सुना है? पेशेंट कैन नॉट वॉक, आंखें खुली है, सब अच्छा चल रहा है. मेरी दादी जैसे, मेरी दादी को सेम चीज़ है. शी इज हाइपर सेंसिटिव टू B12, सो शी कैन नॉट टेक विटकोफॉल इंजेक्शन. B12 की इंजेक्शन नहीं लगा सकती. शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम गेट अटेक्सिया सिंस 9-10 years. बिग प्रॉब्लम. सो आंखें खुली है, शी इज वॉकिंग परफेक्टली फाइन. एक आध बार हाथ पकड़ के चलेगी मेरा, आंखें बंद, फॉल हुआ था लास्ट टाइम, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस टूट गया, हमने किया फिर उसको रिपेयर. B12 डेफिशिएंसी के कारण उसके स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे डीमाइलिनेशन हुआ है. यहाँ के जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस है, हैव यू हर्ड अबाउट डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम? What is that? Dorsal column medial lemniscal system is the system which transmits high velocity fast impulses from your proprioception joint position, all of this to your cerebellum, where it is integrated to tell your brain exactly in which three-dimensional space you are oriented, along with the impulses from your cochlea, spiral ganglion. ठीक है? Anyways, so that is SACD. It is very important in CNS history to take dietary history whether the patient is vegan or not. समझ रहा है तुमको? मजा आ रही है? मेरा मेन गोल है तुमको मजा आनी चाहिए. आ रही ना? नहीं आ रही तो बता दो, मैं चेंज कर दो. तुम्हें नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? ठीक है, गॉट इट. मेरा यूट्यूब चैनल भी है. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट. सो वी केम टू न्यूट्रिशनल हिस्ट्री. नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री. नेम अ डिसीज विच रन्स इन द फैमिली. हाँ, स्लीप इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, इतना बोले तो भी चलता. इफ द स्लीप इज डिस्टर्ब्ड यू कैन जस्ट मेंशन स्लीप इज डिस्टर्ब्ड. स्लीप इज वेरी कॉमनली डिस्टर्ब्ड इन, does anybody know which disease? Hepatic encephalopathy में sleep is disturbed. The patient sleeps during the day, does not sleep during the night. Narcolepsy and somnolence. समझ गए? Insomnia मतलब नहीं आ रही नींद. So sleep is disturbed. If he is suffering from rest pain, it is a thing which Abhijit will teach you today. So rest pain is what? When you have, let's say, atherosclerosis of your legs, वहाँ पे nerves होती है. Atherosclerosis decreases the flow towards the nerves die. That causes extremely severe pain. I've seen rest pain with my own eyes in the patient. I know how bad it is. पूरे समय वो पैर पकड़ के बैठा रहता है, रोते रहता है, पूरे दिन भर रोते रहता है. That is how severe rest pain is. Rest pain में sleep disturbed रहेंगी. वो सोएगा, जैसे ही लेटेगा, his foot will be elevated more than the level of heart. Blood और कम होगा और रात में उठेगा, रोते रोते पैर मसाज करते करते रहेगा. Sleep will be disturbed. So you just have to write sleep is disturbed. क्योंकि यू कैन नॉट मेजर कि REM स्लीप है, phase 1, phase 2, phase 3, whatever, you cannot measure it in your history taking वाला examination. You can do that. Anyways, तो sleep छूट गया था, very nice. उसके बाद था अपना family history. Diabetes, very good. Question for your next. Diabetes में type 1 होता है, type 2 होता है. You know what is type 1? Insulin dependent or non dependent? IDDM is type 1 and non dependent is type 2. अपने mostly घर वालों को होता है. Which type 1 or type 2 has more genetic predominance? That means, very good. It's not type 1. Type 1 is more commonly found sporadically. मतलब family history नहीं है, randomly. मेरा एक friend है, GMC का ही है. He has diabetes type 1. So insulin pump है. Nobody in the family has it. ठीक है? So the thing is कि type 1 is less in the family, type 2 is more. More specifically, it is seen that maternal incidence of diabetes is higher correlating to the child. मम्मी, नानी की मम्मी को हुआ है तो डॉटर को होने का ज़्यादा चांस है. क्या जाता है, बट मोर रिलेटेड. मतलब दादा को हुआ है, पापा को हुआ है, दादा के पापा को हुआ है तो भी है, बट मैटरनल अगर है तो इट इज सिग्निफिकेंस, ऐसा स्टडीज ने बताया. एनीवेज, नेक्स्ट वी गो टू फैमिली हिस्ट्री. बताओ कोई एक. हाँ, डायबिटीज हो गया. नेक्स्ट हाइपरटेंशन. ओके, और थोड़ी स्पेसिफिक बताओ. जो हीमोफिलिया, वेरी गुड. और सिकल सेल एनीमिया, और नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस, और ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट फैमिली. ट्यूबरकुलोसिस तुमको खुद होता है, बट फैमिली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट है जो लोग एक रूम में रहते हैं उनके लिए. कॉन्टैक्ट्स वी से ना, ट्यूबरकुलर कॉन्टैक्ट. सो वेयर वाज आई? टाइम तो नहीं हो रहा ना, व्हाट टाइम है?
हाँ, फैमिली में और कोई डिसीज पता है किसी को? एलर्जीज एलर्जीज, राइट. और अस्थमा. और कोई भी सोचो. थिंक अबाउट कंजेनाइटल डिसीजेस, वो फैमिली में यूजुअली होती है. जैसे इट इज सीन दैट पेशेंट्स हुज पेरेंट्स हैव हैड लेट्स से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उनके जो बच्चे होते हैं दे ऑल्सो सीम टू हैव द हार्ट डिसीज, कुछ ना कुछ टाइप की होती है. ऑब्स्टेटिक्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फैमिली हिस्ट्री. मदर को अगर प्री एक्लैम्पशिया हुआ था तो करंट प्रेगनेंसी में जो डॉटर है उसको प्री एक्लैम्पशिया होने की बहुत चांस. व्हाट इज प्री एक्लैम्पशिया, किसी को पता है? हाइपरटेंशन. सो इन शॉर्ट, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, मोर देन 20 वीक्स हो गए, 20 वीक्स के पहले शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, 20 वीक्स के बाद अगर उसको हाइपरटेंशन डेवलप हुआ, दैट इज व्हाट वी टर्म प्री एक्लैम्पशिया. इसके अलावा वी ऑल्सो सी इफ देयर इज एंड ऑर्गन डैमेज प्लस ग्रेड 3 प्रोटीनूरिया प्रेजेंट है कि नहीं. ग्रेड 3 इज मोर देन 2.5 ग्राम पर लीटर. सो दिस इज योर फैमिली हिस्ट्री. ओके, तो आई विल जस्ट टेल यू वन मोर, लास्ट वाला अपना. इसमें मुझे बताओ क्या मिसिंग है. केस नंबर 5. डेमोग्राफी, 23-year-old फीमेल, चीफ कंप्लेन HOPI, पास्ट हिस्ट्री, नेगेटिव हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, केस समरी, जनरल एग्जामिनेशन. कुछ मिसिंग है कि नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नैरो डाउन कर लो कि ये मैंने ऐसे ही तुमको ट्रिक करने के लिए रखा है क्या कुछ मिसिंग? ट्रैवल हिस्ट्री नॉट सिग्निफिकेंट इन दिस केस, लेट्स से. कुछ है मिसिंग? आई विल रीड अगेन. डेमोग्राफी, 23-year-old फीमेल, चीफ कंप्लेन HOPI, पास्ट हिस्ट्री, नेगेटिव, डाइटरी, पर्सनल, फैमिली, सोशो इकोनॉमिक, केस समरी एंड जनरल एग्जामिनेशन. ड्रग हिस्ट्री तो मैंने पास्ट हिस्ट्री में लिख दिया. एग्जैक्टली क्या भूल गए? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. मुझे मेरे सर्जरी के प्रोफेसर ने एक केस बताया था जिसके बाद से हमारे कॉलेज में बहुत कुछ स्ट्रिक्ट हो गया. सो a lot of the times they found out that the JRs who are actually taking the history of the case, they absolutely forget to put menstrual history in their notebook. So एक lady आई, ठीक है, and she had right, क्या कहते हैं इसको, inguinal fossa, iliac fossa, tenderness था और पेन था, फीवर था, नोशिया, वॉमिटिंग थी, ऑल द साइंस पॉइंटिंग टूवर्ड्स, बोलो यार, acute appendicitis. They opened the case, they found she has fallopian ectopic pregnancy. If the JR would have taken the history of amenorrhea last menstrual period 3 months ago, we could have gone with some investigation, we could have seen. ये तो उन्होंने ऐसी, मेरे को लग रहा है मजाक में बताया होगा, because before you diagnose appendicitis, it is clinical diagnosis, but you always have to confirm with USG or CT scan or whatever. So very important in all cases of females to write. Very good. Menstrual cycle कौन फट से एक्सप्लेन करेगा? अटेंडेंस शीट है क्या तुम्हारे पास? 24 नंबर वाले को बोलो. मौर्य. फट से कम ऑन. मैं 12th का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता. हाँ, क्या होता है भाई मेंस्ट्रुअल? मैं पहली बार सुन रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ, बताओ ना तो क्या चलता है? Every month egg is released. So एग इज रिलीज. यस, एग नहीं रहता ना, ओवम रहता ना. हाँ every month ovum release होता हाँ. है, तो उसके कारण along with that mucus and blood. ओके, किसको अच्छे से पता है? अच्छा बेटा, अच्छा बता तूने. और अच्छे से पता है किसी को? फेजेस होता है, सिक्रेटरी फेज. हाँ तो बताओ, कोई एक बता दो यार, कोई फीमेल ही बताओ. यू माइट बी अवेयर मोर. आप बता दीजिए. क्या पूछे? हाँ, स्टार्टिंग डे वन इज राइट. कितने दिन चलता है? वेरी गुड. फिर उसके बाद वी स्टार्ट विथ प्रोलिफरेट. कितने दिन चलता है? टिल 14 डे. 14 डे को क्या होता है? ओव्यूलेशन. फिर क्या हुआ? नेक्स्ट कौन सा फेज शुरू हुआ? लुटियल फेज. राइट. सो कितने दिन चला वो? 28 डेज तक चलता है. फिर 28 डेज को नया मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है. विच इज द हार्मोन विच पीक्स इन द फर्स्ट फेज? नहीं, LHFSH तो ऊपर वाले हो गए. ओवेरियन हार्मोन्स बताओ. एस्ट्रोजन. इन सेकेंड फेज प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय
corpus luteum. Corpus luteum around day, degenerates around day 14 को तो शुरू भी नहीं हुआ है बनने, क्योंकि 14 को ओव्यूलेशन हुआ है. यू नो ना, ग्राफियन फॉलिकल निकला, उसके पीछे थीका सेल्स छूट गए, थीका सेल्स ने कॉर्पस लुटियम बनाया, लुटियम ने क्या सिक्रेट किया, प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन से एंडोमेट्रियल, प्रोजेस्ट्रॉन इज द सीमेंट, सीमेंट के कारण एंडोमेट्रियल थिकनिंग बड़ी 18 mm 20 mm तक गया. देन व्हाट विल हैपन, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट्स, बिकम्स कॉर्पस, व्हाट विल हैपन, प्रोजेस्ट्रॉन खत्म, सीमेंट गया, down, menstruation happens. Simple. So this is the basic of menstrual cycle. What do you mean by menarche? Menstruals usually 7th 8th के अराउंड बिगिनिंग हो जाता है, मैक्सिमम लोग जितने से मैंने पूछा है. What is menopause? Complete stopping of menstrual cycle. I think 12 months duration रहता ना, अगर 12 महीने तक नहीं आए तुमको menses after the age of 45 46, that is considered as menopause. What is क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया, ये थोड़ी गायनेक के टर्म्स हो गया. पॉलीमेनोरिया एक्सेस अमाउंट है या क्वांटिटी है या ड्यूरेशन है या डेज है, आई लीव दैट टू हिम. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एमेनोरिया इज द थिंग विच यू शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट. व्हाट इज एमेनोरिया? वेरी कंसर्निंग. ठीक है. कंसर्निंग मतलब कुछ लोग के लिए अच्छा भी होता है, वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंसर्निंग. ठीक है. सो कंसर्निंग इन द सेंस दैट इट मीन्स दैट समथिंग हैज स्टॉप्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल which was previously normal. Okay. So what are some of the causes of amenorrhea, do you know? First of all, there are two causes, primary and secondary. Most common is secondary. Secondary में क्या? Pregnancy. Pregnancy is the most common cause of amenorrhea overall. ठीक है. Primary amenorrhea is a thing where particular defect is already present, so menstruation is being stopped. वो पढ़ाएगा और मेरे को नहीं पता है सब. ठीक है. So what do we get? We get ये basic menstrual cycle समझ गया. You always have to start your menstrual history. दो अलग हो गया, आप गायनेक में अलग है बिकॉज वहाँ पे डिटेल्स चाहिए होते हैं. इन मेडिसिन यू हैव टू स्टार्ट विथ मेनार्क. सो मेनार्क वॉज एट द एज ऑफ, लेट्स से क्लास नहीं बोलना है, क्लास 7th नहीं बोलना है, 14 13 15 सबका अलग अलग, वट एवर यू जस्ट से राइट इट. इफ स्पेशली इफ द गर्ल इज यंग, लेट्स से 18-year-old गर्ल काफ़ी बार स्प्लीनोमेगाली के साथ ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया करके एडमिट होती है वार्ड में. सो यू हैव टू आस्क इन डिटेल कि बता भाई थोड़ा कब हुआ. अगेन एंटीफॉस्फोलिपिड का अपना थोड़ा कोरिलेशन है इधर. सो दैट इज योर मेनार्क. देन यू हैव टू आस्क द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेशन? कितने दिन की है? ठीक है. तो उनको बोलना हर महीने आती है, 2 महीने एक बार आती है, 3 महीने एक बार आती है, नहीं आ रही है, कभी आई नहीं. ठीक है. सो दैट इज द थिंग, दैट इज द ड्यूरेशन, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू अब आस्क हाउ मेनी डेज आर यू ब्लीडिंग. 5 days, 6 days, 10 days, 15 days, 28 days, it happens. ठीक है. सो वाई इज दिस सिग्निफिकेंट? क्यों सिग्निफिकेंट है ब्लीडिंग? बहुत ज़्यादा ब्लीड होगा तो क्या होगा? वेरी वेरी कॉमन. तुम इंडिया की कोई भी फीमेल का देखो पैलर, you will find some sort of pallor there. Because India is a state where we are very nutritionally deficient. Iron rich food कोई खाता नहीं है, जो खाता है उसको एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसको एब्जॉर्ब हो जाता है उसको यूटिलाइज नहीं होता है. इतनी प्रॉब्लम्स है. ठीक है. सो पैलर इज सिग्निफिकेंट. ओके. इट बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट when it is present in other sites as well. म्यूकोजा, पाम्स, नेल्स. हम पैलर पे जाएंगे इसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में. सो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में तुमने लिया मेनार्क, ड्यूरेशन 28 days, फ्लो ऑफ 5 days. तो उसको लिखते हैं 5/28. 5/28. 5 days यू आर ब्लीडिंग, 28 days की साइकिल है. व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल? प्लस माइनस 7 days ना, प्लस माइनस 7 days. मतलब अप टू 42 days तक के बहुत ज़्यादा हो जाता, और अप टू 21 days तुम्हारा ये लिमिट है. अगर 21 के अंदर हो रहा है सो वी से पॉलीमेनोरिया. अगर मोर देन 42 हो रहा है वी से ओलिगोमेनोरिया. गायनेक का टर्म से. सो दैट इज योर menstrual history. With that you conclude the history of the patient. So जो इस क्लास में अभी 2nd year में बच्चे गए, have you understood? Have you understood? तुमने हिस्ट्री कभी नहीं ली होगी लाइफ में, बट नाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग सो. तो ओके, लेट्स डू समथिंग. आई नीड 2 volunteers. कोई 2 डॉक्टर कौन है जो मेरी हेल्प करेंगे? 2nd year वाले बोल रहा हूँ मैं. एक 2nd year वाला और एक 3rd वाला.
दे रोल नंबर है, ये सुनते नहीं ऐसे। हाँ ठीक है ना, दे दे। हिमांशु, हाँ तू सेकेंड ईयर में गया ना अभी, तू थर्ड ईयर है। हिमांशु और अपना श्रिया, सृष्टि थर्ड ईयर, आ जाओ चलो बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ। गिवन द केस ऑफ मी मिस्टर XYZ 23-year-old मेल। सो अब तुमको मेरे केस के बारे में कुछ नहीं पता, तुमको कुछ भी नहीं पता, तुमको बस JR ने L3 का चिट्ठी दिया, मैं L3 पे हूँ एंड लेट्स से मैं 45-year-old मेल हूँ, ठीक है। और तुमको आते समय दिख रहा है मेरा पेट जो है एब्डोमेन बहुत डिस्टेंडेड है, मोस्ट लाइकली पानी से भरा हुआ है। अच्छा क्लू मिल गया अभी तो, ठीक है। सो फास्ट तुम डेमोग्राफी चालू करो, चीफ कंप्लेन HOPI ऐसे, ठीक है। अल्टरनेट, तुम थर्ड ईयर वाले हो ना, तो HOPI तुम लो, दैट ओनली मीन्स दैट यू आर टेकिंग डेमोग्राफी। गो फास्ट, चलो टाइमर लगाओ भाई कोई। हाँ नहीं नोटबुक नहीं। एक अच्छी बात सुन लो मेरी, कभी भी हिस्ट्री लोगे ना पेशेंट की, डेमोग्राफी तुम स्टार्टिंग में पूछ लेना, सुन लेना, पूरी हिस्ट्री सुनो पहले बैठ के, नोटबुक मत लो। नोटबुक में बहुत टाइम पास होता है, तुम नोटबुक में लिखते हो, फिर वो बोलता है, फिर लिखते हो, फिर बोलता है, लिखते हो। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू, अंडरस्टैंड, फॉर्म द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज इन योर माइंड, यू गेट टू द डायग्नोसिस एंड देन फ्रेम योर हिस्ट्री सो दैट इट लीड्स टू द डायग्नोसिस। तुम अगर लिख लोगे पहले, तुम्हारा शीट भर जाएगा एक तो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा वो अलग। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर टेकिंग द हिस्ट्री, नेवर एवर टेक योर नोटबुक विथ यू। नोटबुक साइड में रखना। हाँ मैं आपका 5 मिनट जांच करूंगा, मेरे को आप बताओ आपकी पूरी कहानी स्टार्टिंग से, जब से आप ठीक थे और यहाँ तक के कैसे पहुंचे, वो पूरा तुमको नेचुरल हिस्ट्री अपने आप बताएगा। मैं ठीक था सर 5 साल पहले, फिर मेरे को हाइपरटेंशन निकला, फिर 2 साल पहले मेरे को एक बार दिमाग का दौरा पड़ा था, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, पूरा बता देगा तुमको। सुनो उसका HOPI इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो बोलो 3, टाइमर कौन लगा रहा है? तुम बस चालू कर दो टाइमर। 3, 2, 1 गो। सर फर्स्ट विद द नेम। पूछो तुम मुझे, मैं पेशेंट हूँ। हिंदी में बोलो, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती। सर आपका नेम? मैं अनुज पछेल। सर आपकी एज? 45 ईयर। डेमोग्राफी और पूछो ना। रेसिडेंस सर आप कहाँ से? हाँ देवनगर नागपुर से हूँ मैं। अबे सॉरी मैं बता नहीं सकता है मेरा। मैं हूँ मेडिकल चौक नागपुर से हूँ मैं। हाँ सर आपका ऑक्यूपेशन? मैं टीचर हूँ। ठीक है तो बोल। हाँ सर, चीफ कंप्लेंट आपको क्या हाँ सर आपको क्या तकलीफ है, आपको क्यों आया आप हॉस्पिटल में? पेट में पानी भर गया। कितने दिन से भरा है सर? हो गया 2 महीने। दर्द देता आपको पानी? उतना नहीं। और कुछ कंप्लेंट इससे और कुछ? बस अभी तो पेट में ही पानी भरा है। पेट में पानी भरा है। ये ऐसे ही बोलते हैं भाई। हाँ बोलो बोलो बोलना है, चुप यार कुछ। तो अभी यहाँ पे हम अटक गए बिकॉज हमने इस केस स्पेसिफिक डिस्कस नहीं किया है। सो आई विल हेल्प हिम आउट। तुम्हारा चीफ कंप्लेन है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट में पानी भरा इज नॉट योर चीफ कंप्लेन। मैं बता रहा हूँ, तुम नहीं लिखोगे। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डिस्टेंशन इज अ नॉर्मल टर्म, मेनी पीपल यूज इट। डिस्टेंशन ऑफ द अम्बेलिकल पार्ट ऑफ एब्डोमेन नहीं बोल रहे, तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। नाउ इन योर माइंड तुमको कॉजेस ऑफ डिस्टेंशन आ जाने चाहिए चीफ कंप्लेन के। क्या क्या है किसी को पता है? 7F 8F रहता है। फैट, फ्लूइड, फीटस, मेरे में तो फीटस पॉसिबल नहीं है। फिर फैट, फ्लूइड, फ्लैटस, फीसिस, फुल यूरिनरी ब्लैडर, ट्यूमर, ठीक है। ये सब कॉजेस है तुम्हारे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के, राइट। तो ये कॉजेस है। तो HOPI मेरे को पूछ तू कैसे चालू हुआ तुम्हारा डिस्टेंशन, कैसे चालू हुआ। सो ये मैं बोलूँगा हाँ मैं ऐसा था कि 1 साल पहले मैंने जब दारू छोड़ा उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, और 1 साल तक के मेरा भी पेट ये फुल बड़ा हो गया है। और अब मैं जब सोता हूँ तो सोने के कारण मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को करवट लेके सोना पड़ता है। हाँ तो ये हो गया मेरा HOPI। अब तेरे को ये लिखना है। सो यू विल हैव टू राइट ओके द पेशेंट वाज अपेरेंटली एसिम्प्टोमेटिक 1 year ago when he developed distension of the abdomen, which was insidious in onset, gradually progressive. and Currently it is enlarged to the state where it is difficult for him to breathe while in the lying down position, not in supine position, ठीक है, in the lying down position, ठीक है। और aggravating non-aggravating? वेरी गुड। एग्रीवेटिंग ऐसा कुछ नहीं, वैसा कि वैसा है वो। और एक बार बीच में सुई से निकाले थे, उसके बाद फिर भर गया।
ये एग्जैक्टली यही हिस्ट्री असाइटिस की. असाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना, दारू पीने का अर्थ होता है. ठीक है. सो aggravating factor कुछ नहीं है. Relieving factor is patient had already experienced a similar episode before, which was treated in this hospital. Don't tell about treatment. If you want to tell about treatment, there is a specific thing called as treatment history, which you write after HOPI is completed, before negative history. ठीक है, go on. नेगेटिव वोमिटिंग हुई थी आपको खून वॉमिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. खून की वॉमिटिंग पूछा इसने. क्यों? हिमेटोमिसिस करके एक चीज़ है जो विच इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर लिवर डिसीज. वेराइसिस सुना है? इसोफेजियल वेन्स मर्ज विथ आई थिंक अजाइगस वेन्स एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. तो ऑल ऑफ दिस कॉज डिस्टेंशन. सो कुछ भी होता है दे रप्चर एंड कॉज वीनस ब्लीडिंग. ओके, वेरी गुड. तो नेगेटिव हिस्ट्री में फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ हिमेटोमिसिस वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. तो इसने डिफरेंशियल्स छोड़ दिए, पहले कॉम्प्लिकेशंस पे आया. वेरी गुड. तुमने क्या पूछा? ये. फिर history of blood in stools is also very important. Why? Because same happens with the external rectal plexus. ठीक है, internal rectal plexus I mean. ठीक है, पेनलेस होता है वो. एक्सटर्नल वाला पेनफुल रहेगा. फिर नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे तुमको साइंस ऑफ लिवर फेलियर पूछना है कि बिकॉज तुम सस्पेक्ट करो लिवर डिस. एलोपेशिया है क्या? तुमको गायनेकोमेसिया है क्या? तुमको स्पाइडर नेवा है क्या? तुमको पाल्मर एरिथीमा है क्या? तुमको ड्रुपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर है क्या? तुमको क्या बोलते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर है क्या? फ्लैपिंग ट्रेमर तो पूछोगे नहीं तुम ये बोलोगे तुम डे टाइम स्लीपी हो क्या? सोमनोलेंस, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी के ग्रेड्स में आता है वो. सोमनोलेंस है क्या? तुमको नार्कोलेप्सी है क्या? तुमको इंसोम्निया है क्या? सो ऑल ऑफ दीज आर सिम्टम्स ऑफ योर लिवर डिसीज. सो इतना है. इसने बहुत अच्छा HOPI लिया गिवन द फैक्ट दैट ही डज नॉट नो मच अबाउट द केस. नेगेटिव हिस्ट्री भी हो गया. नेक्स्ट व्हाट विल यू आस्क? पास्ट हिस्ट्री पूछो. वेरी सिग्निफिकेंट इन माइंड. एनी सर्जरी? सर्जरी, कोई सर्जरी? हाँ वो सुई से निकाला था पानी, एक हो गया वो. उसके पहले कोई और सर्जरी नहीं हुई? डू यू थिंक सर्जरी? हाँ. अपेंडिक्स का या नहीं अपेंडिक्स भी नहीं हुआ. बस वो एक बार सुई से निकाला था. उसके अलावा पास्ट में क्या तुम्हें कभी लिवर का इन्फेक्शन हुआ है? क्या तुमको पहले जॉन्डिस हुआ है इसके? वाई? बिकॉज सिरोसिस और हिपैटिक ये हिपेटाइटिस बी वायरस जो होता है इट इज़ नोन फॉर क्रॉनिसिटी. हिपेटाइटिस सी इज नोन फॉर क्रॉनिसिटी. दिस विल बी मच मोर सिग्निफिकेंट. क्या आपको इसके पहले कभी उल्टी और ये सब हुआ है, नौशिया, वॉमिटिंग? तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री. नेक्स्ट यू गो टू नेगेटिव पर्सनल हिस्ट्री. तुम पूछो पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री में सो योर एडिक्शन. पहले एक सिग्निफिकेंट चीज़. हाँ आपने मतलब आप पीते हो? हाँ बहुत. कितने साल से पी रहे हो? 20-25 साल से. कितना क्वांटिटी में पीते हो? पहले पूछो क्या पीते हो. क्या पीते देसी. कितना क्वांटिटी में पीते हो? एक बॉटल एक दिन में. बॉटल कितनी बड़ी? हाँ वेरी गुड. बॉटल कितनी बड़ी? ml पकड़ लो 200 ml. 200 ml पर डे. कितने साल? 20-25 साल. 25 टीचर हूँ मैं बाय द वे. हाँ. और स्मोकिंग. वेरी गुड. स्मोकिंग क्योंकि एसोसिएटेड रहता है, तुमने देखा होगे. सो स्मोकिंग करते हो क्या? हाँ स्मोकिंग भी करता हूँ. कितने साल से? सेम 20-25 साल. और कितने मतलब कितना करते हो दिन में? 10 सिगरेट फूकता हूँ. सिगरेट या बीड़ी ये भी डिफर करता है. बीड़ी और सिगरेट में फ़र्क होता है. ठीक है. 10 बीड़ी पीता हूँ लेट्स से. ड्रग्स? नहीं किया यार. ठीक है. और कुछ? आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो? हाँ अभी यहाँ पे जो दे रहे हैं, यहाँ पे जो दवाई दे रहे हैं वो ले रहा हूँ मैं. उससे पहले से? इससे पहले एक बार दारू छुड़ाने की दवा लिया था, उससे कुछ काम नहीं आया. कितने साल तक? क्या है दारू छुड़ाने की दवा? एनीबडी नोज? हाँ वेरी गुड. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? Exactly, alcohol dehydrogenation. Acetaldehyde is the toxic metabolite accumulated which causes so many problems. Which is the drug which should not be taken with disulfiram? Very commonly used drug. You go to a party, you develop diarrhea, next day you take that drug. 400 milligram is the dose. Exactly, metronidazole is the drug. It causes disulfiram reaction. बहुत प्रॉब्लम हो जाती. So, हाँ तंबाकू नहीं, बस इतना ही है. स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट? हाँ डाइट में तो मोस्टली दारू ही रहता है. वेज नॉन वेज? नॉन वेज. कितने
नहीं, वो सब इसमें उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. सिग्निफिकेंट होगा जब उसको हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी डेवलप होगी, बिकॉज प्रोटीन रिच डाइट इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी. ओके. Bladder and bowel. हाँ, bladder and bowel habits are very important. Why? Because in bowel you will see that if a patient has severe distension, उसका sigmoid colon वगैरह अगर press हो जाता है, so that causes constipation. Secondly, he will also be in a more tendency to develop क्या बोलते हैं उसको, hemorrhoids. So hemorrhoids will bleed, bowel habit will be disturbed, so much blood will come out. So that is significant. Sleep is also significant. और तुम पूछो next history कौन सी है? फैमिली हिस्ट्री सर. फैमिली हिस्ट्री. हाँ, नहीं कोई नहीं पीता मेरे इधर, मैं अकेला ही. आपके घर में किसी को डायबिटीज है? डायबिटीज़ नहीं. आपके घर में किसी को बीपी का तकलीफ है? आपको हाँ, मुझे बीपी का तकलीफ मम्मी को था. मम्मी को था. अस्थमा वगैरह से बीमारी नहीं, है आपको? अस्थमा तो पता नहीं, दमा था एक बार. दमा था. आपके घर में किसी को टीबी हुआ था ऐसे? टीबी मुझे हुआ था, ठीक हो गया, बट बहुत हुआ था. So if somebody gives a positive history of tuberculosis, what do you ask? कब हुआ था? कब हुआ था? 10 साल पहले हुआ था. Next, what do you ask? दवाई खाई थी क्या? खाई थी. Next, what do you ask? कितने दिन खाई थी? कंप्लीट किया था क्या? क्यों? कितने दिन का रहता है रेजिमेन अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है? 6 months. 2 months is intensive, 4 months is continuous. 2 months में HRZD. Next is HRE, alternative day regimen. एक गोली INH की, 2 गोली रिफाम्पिन की, 2 गोली तुम्हारे Z की, और आई थिंक 2 या 3 गोली E की पर डे, अल्टरनेट डेज पे. दैट इज योर स्टैंडर्ड डॉट्स रेजिमेन. इफ द पर्सन सेज मैंने 9 months to 18 months के लिए लिया था, सो दैट इंडिकेट्स ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस. इट कुड बी MDR ट्यूबरकुलोसिस. इफ दैट हैपेंस, वेयर योर मास्क. 2 कदम पीछे लो और वहाँ से बात करो. यू डोंट वांट MDR TB. इट्स वेरी 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 बैड. ओके. सो हाँ, टीबी हुआ था, 6 महीने दवाई खाई, ठीक हो गया, उसके बाद नहीं हुआ कुछ. कभी आपको किसी नहीं, कोई एलर्जी नहीं. you come to the examination? हाँ, ठीक है. सो ही हैज आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. वेरी वेरी गुड. ठीक है, नाउ यू कैन गो बैक. तो समझा तुम्हें कैसे करने का है? इतने फास्ट यू हैव टू बी. तो द रीजन वाई वो 2-3 जगह पे अटके was because he did not know the differential diagnosis of distended abdomen. He did not know, so he could not proceed with the HOPI. He could not proceed with the negative history. He could not proceed with so many different things. So what you need to know is, first of all, know your diseases. Always remember, most common जो diseases है उसके कुछ चीज़ें याद कर लो. सिम्टोमेटोलॉजी के कुछ डिफरेंशियल याद कर लो. मैंने अगर बोला रहता हाँ मुझे फीवर आया, so you are automatically thinking of infective cause, right? But non-infective causes are also there of fever. किसी को कैंसर होता है, किसी को रूमेटिक डिसीज होते हैं. All of these are also having fever. So got it? That is your differential diagnosis. तुमको आना चाहिए, तभी you can go ahead. Okay, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है क्या? Because we have done our history. कोई क्वेश्चन है? नहीं? हाँ तो बोलो, मतलब हाँ बोलो. Yes, in negative history you can use the medical term, but don't be extremely medical. ठीक है, मतलब you can say कि he does not have history of let's say black tarry stools instead of saying melena. ठीक है, मतलब black tarry stools कोई बताएगा तो नहीं. ठीक है, but you are still using it. So up to HOPI it is absolutely contraindicated. After HOPI you can use a little bit medical terms. After past history you can go in very much detail. आफ्टर पास्ट हिस्ट्री सब बता, हीमोग्लोबिनोपैथीज थी, उसे ये था, डायबिटीज़, मेलाइटस, इंसिपिडस, व्हाटएवर. बट अप टू HOPI पेशेंट की भाषा है. ओके. नेगेटिव हिस्ट्री में भी ट्राई, इफ़ यू आर एबल टू डू इट इन पेशेंट्स टर्म्स, इट इज़ वेरी गुड. ठीक है, ओनली इफ रिक्वायर्ड यू यूज द मेडिकल टर्म. और कुछ किसी को डाउट? हिस्ट्री समझ गई? बोलो हाँ. हाँ बोलो जोर से. वेरी वेरी गुड. सो एक और बार अपन लेते हैं. पहले क्या लोगे तुम? First thing you ask to the patient is demography, chief complaint, HOPI, negative history, past history, personal history, family history, drug history, menstrual history. बस. ठीक है. सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी होती है. PSM वाले तुम लोग का इस बार PSM है ना. सो सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, I'll just tell you, you have to basically ask him about what is the total amount of income his family is earning. ठीक है,
how many are the number of people present in his family? Who is the head of the family? What is the occupation of the head of the family? What is the education of the head of the family? Using all of these components, you apply this to the modified Kuppuswamy scale. Do you know the scale? हाँ बताओ classes. ऊपर से चालू करो या नीचे से चालू करो? अपर, रुको अपर, पहले सबसे पहले क्या है? अपर, अरे पहले अपर होगा ना, पहले अपर, फिर अपर मिडल, लोअर मिडल, लोअर मिडल, अपर लोअर लोअर, अपर मिडल के दो पार्ट, अपर मिडल लोअर मिडल, लोअर के दो पार्ट, अपर लोअर लोअर, अपर मिडल लोअर मिडल, अपर लोअर लोअर. गॉट इट? तो दिस इज मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन, वेरी कॉमनली यूज्ड. अपने नागपुर में से जो भी पेशेंट आएंगे MKS यूज होने वाला है. अगर तुम्हारा पेशेंट आया रूरल एरिया से तो BJ प्रसाद, BG है कि BJ है? BG प्रसाद. So Prasad classification you can use. The thing which matters the most in Prasad classification is the source of income. The education is not given any importance, the profession is not given any importance, and there is a reason for it. In rural areas, maximum people will be involved in which profession? Agriculture. So if you are doing agriculture but you are a BSc, will it affect your agriculture? Not much, right? Because it's the science of growing crops. So therefore, in rural areas, we do not give that much significance to education as well as occupation. We directly go to the income. अब income में भी दो type होता है. There is the gross family income. Total मिला दो कितना है? 1 लाख आया, 2 लाख आया, 50,000, 20,000, 5,000. ठीक है? एक महीने का बता रहा हूँ मैं. And there is the per capita income. Which do you think is more sensitive? There is a family of 5 who is earning 20,000 per month, and there is a family of 2 earning 10,000 per month. Per capita income में will be able to differentiate whether each individual is, मतलब per individual कितना है. So per capita income is a more reliable factor for your socio-economic history. Then in socio-economic history, in PSM specifically, because you have the subject, you also have to write about what kind of house are they living in. Family history में आता है, मतलब socio-economic में family history में. So कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, फ्लोर कैसा है, रूफ कैसा है, कितने वॉल्स है, खिड़कियाँ बराबर है क्या, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है क्या, कच्चा टॉयलेट है क्या घर पे अवेलेबल, मस्कीटोज आसपास है क्या, डोमेस्टिक एनिमल्स है क्या, वेदर देर इज काउ और देर इज डॉग और शीप और देर आर ग्राउंड्स फॉर ब्रीडिंग मस्कीटोज. सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर इन PSM. You don't have to mention any of this in medicine. Most of the times in medicine you just skip. तुमने डेमोग्राफी मेंशन कर दिया, अपर लोअर क्लास, more than enough. Okay, got it? हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. अब तुम 5 मिनट में हिस्ट्री लोगे. सो हाँ, और कोई केस है क्या मेरे पास? विद द एग्जामिनेशन वाला पार्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बना के लाया हूँ. सो आई थिंक यू शुड राइट दिस डाउन. आई विल जस्ट डिक्टेट फास्ट. सो दिस इज स्पेसिफिक फॉर हिस्ट्री टेकिंग. ओके, छोटे से ही है. इन हिस्ट्री टेकिंग थिंग्स यू शुड रिमेंबर. फर्स्ट, prudent to make changes as you go. समझा मतलब? हाँ बोलो. चेंजेस बनाते रहना एसेंशियल है, बिकॉज अगर तुमने चेंजेस नहीं बनाया तुम्हारा हिस्ट्री विल लीड यू समवेयर एल्स. SOAP कैपिटल में लिखो, एक्रोनिम है. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान. So in India we use this term history taking. In foreign countries, if you go to Europe, if you go to someplace else, they'll ask you for the SOAP sheet. सोप शीट. सो यू लाइक सोप शीट क्या होती है? तुम उनको पेपर सोप दोगे निकाल के. दैट इज नॉट द सोप शीट. सोप शीट इज द थिंग विच यू कॉल हिस्ट्री टेकिंग शीट इन फॉरेन कंट्रीज. सोप, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ए से असेसमेंट, प्लान. सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट विल टेल यू द हिस्ट्री. ऑब्जेक्टिव मतलब यू विल डू द एग्जामिनेशन. देन यू हैव द असेसमेंट which is exactly the case summary, and lastly plan, which is the treatment, investigation, management. समझ गया? Everybody got it? In negative history, there are a few negative history you should all have by heart, which will really help you write your case sheet in your examination. Obviously, negative history have to be system specific. So for the system RS, you always have to ask about history of dyspnea. What is dyspnea? Difficulty in breathing. You have to ask about cough. You have to ask about sputum, and you have to ask about chest pain. Chest pain can be due to RS causes, CVS causes, musculoskeletal causes,
GIT causes, it could be due to many more things. It could be also due to pancreatic causes. Acute pancreatitis radiates to the chest. Gastric ulcer radiates to the chest. So RS maybe you have to ask about chest pain. Next system is CVS. So whenever you are taking a history of CVS, you understood कि patient has some sort of heart disease. Always ask them about chest pain. Angina is a very specific symptom. Next symptom you have to ask about is PND. किसको पता है PND क्या है? Paroxysmal nocturnal dis. Very good. Is paroxysmal nocturnal dyspnea, right? Dyspnea मतलब हाँ बताओ, बिंदास बताओ. रात के टाइम पे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रहती है. Exactly. उसका MI का हाँ क्लिनिकल फीचर है. हाँ. मतलब वो अगर ऐसा पेशेंट ने कहा कि तो पक्के से यही डिजीज है हाँ. कि वो रात को उसकी नींद खुल जाती है और वो खिड़की के पास. वेरी नाइस बैठो. सो व्हाट ही हैज सेड इज एग्जैक्टली करेक्ट. एक छोटा सा करेक्शन है. सो PND में क्या होता है, आई टेल यू. अ पर्सन इज वेरी हेल्दी थ्रू आउट द डे. उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको डिस्निया नहीं है, चेस्ट पेन नहीं है, कुछ नहीं है. इन द इवनिंग ही गोज टू स्लीप. व्हाट हैपेंस व्हेन ही गोज टू स्लीप? In 1 or 2 hours, just after he goes to sleep, he wakes up gasping for air. He cannot breathe. ठीक है? He feels like I'm going to die. He feels this sudden anxiety palpitations. He goes running towards the window. This is very specific for PND. मेरे साथ एक बार हुआ है PND, पता है? मैं खुद के साथ. तो he goes running towards the window. और ये पूरा सेम हुआ था ऐसे ही. Goes running towards the window, gasps for air. You understand? He gasps for air. And he inhales the air as if it is like अमृत है उसके लिए, वो समझ रहे हो. सो दैट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक कंडीशन. अगर PND है, PND का सिर्फ एक ही कॉज है, दैट इज CVS. कॉज मतलब सिर्फ CVS में ही PND होता, RS के कारण PND नहीं होता. इट इज अ स्पेसिफिक सिम्टम फॉर CVS, नॉट MI, CVS. एंड उसमें भी इट सिग्निफाइज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. सो ऐसा हाइपोथेसाइज किया जाता है व्हेन यू आर इन योर REM sleep 1 to 2 hours after you have slept. In REM sleep, your left ventricular function again becomes compromised. Once the left ventricular function becomes compromised, back pulling of the blood happens in where? Lungs. क्योंकि lungs से आ रहा है blood left में. Once the pooling in the lungs happen, you feel dyspnea. क्योंकि lungs में अभी क्या भर गया है? पानी. क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, खाली होना चाहिए lung. Then you wake up. Once you wake up, REM sleep is broken. Once REM sleep is broken, left ventricle function is restored. That edema is gradually reabsorbed by around 20-30 minutes. By the time you go to the window, almost half of the thing is relieved. You start gasping for air. Once you start gasping for air, that edema is resolved in the lungs. This is a classic episode of PND. मत बोलो, क्या बोलो? बोलो paroxysmal nocturnal dyspnea. वापिस CVS का. What is the other symptom of CVS, which is मतलब कौन सा ऐसा दूसरा सिम्टम है which is only found in CVS. अगर वो हिस्ट्री मिल गई तो उसका हार्ट के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है. I in fact even mentioned this a few minutes ago. Palpitations कॉमन है. किसी को थायराइड का इशू है, किसी को एंडोक्राइन का इशू है, किसी को कोई और डिसीज है. लेफ्ट आर्म में पेन थोड़ा सा वेग हो गया. लेफ्ट आर्म में पेन तो बहुत सारे कारण हो सकता है. आई बैंग माई हैंड, लेफ्ट आर्म पेन चालू हो गया. रेडिएटिंग फ्रॉम द चेस्ट तो लंग्स का भी हो सकता है. निमोनिया है, किसी को कंसोलिडेशन है, पेन रेडिएट हो रहा है. स्वेलिंग इन लेग्स के तो हजारों कॉजेस हो गए आई थिंक. सो एनीबडी? पेन है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. चेस्ट पेन बट हाँ, रेट्रोस्टर्नल के भी कॉजेस है. रेट्रोस्टर्नल अगर तुम्हारे पेन होता है तो उसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं. बोर हाइव सिंड्रोम सुना है कभी? रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन. बहुत सारी कॉजेस में रेट्रोस्टर्नल होता है. बताओ CVS का तुम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हो CVS में अगर खोलते हो तो? पेरिकार्डियम नहीं, तुम मायोकार्डियम पढ़ते हो ना पहले. क्या पढ़ते हो? MI सुना है कभी? A pain which is relieved on taking sorbitrate. A pain which is relieved on taking GTN. Anginal pain is the most specific symptom of involvement of CVS. There are only two symptoms which are highly specific for the involvement of CVS. First is angina. समझता है ना angina क्या होता है? Supply demand mismatch. Got it? Oxygen supply, myocardium demand. Mismatch हो गया. Myocardium working too hard. Oxygen not being enough. ऑक्सीजन कम जा रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, अंजाइना शुरू हो जाएगा.
When you give nitrates, it reduces the preload, then it reduces the afterload. Hard, easy. ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा. So that is your two symptoms, PND and angina, very specific for CVS. Next you have to write in CVS orthopnea. Orthopnea मतलब ठीक है. Then you have to write ankle swelling. Ankle में swelling है, it is not exactly specific for CVS, but if a swelling that starts from the ankle signifies right heart failure. If the swelling starts from the face periorbital area, that signifies nephrotic syndrome. Got it? If the swelling starts from the abdomen, it signifies liver cirrhosis. Okay, yeah, portal hypertension. In GIT, you have to ask about abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, blood in the stools or in the vomiting, and lastly, any sort of abdominal mass. Please write this history down because in negative history, you have to ask this to every patient. लिख लिया? GIT, abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, blood in stool, blood in vomiting, mass in the abdomen. अगर तुमने ये सब नेगेटिव हिस्ट्री में पूछ लिया और सबका आंसर नहीं है तो मोस्ट लाइकली यू कैन से द GIT इज नॉर्मल. ओके, नेक्स्ट वी हैव CNS. हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, टिनिटस. टिनिटस किसी को हुआ है कभी? कान में से होता है, हाँ, तो बहुत कॉमन है, अपने को भी होता है. टिनिटस, ब्लैकआउट एंड वीकनेस, दीज आर स्पेसिफिक सिम्टम्स फॉर CNS. पास्ट हिस्ट्री में यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू ऑलवेज रिपोर्ट एज डिसीज ड्यूरेशन ड्रग. कैसा? बोलो बोलो. डिसीज कौन सी? लेट्स से हाइपरटेंशन, ड्यूरेशन 10 years, ड्रग एम्लोडिपिन. ठीक है, एंड ड्रग में भी कितना मिलीग्राम. एंड फैमिली हिस्ट्री में यू कैन आस्क DM, TB, HTN, अस्थमा, ऑटो इम्यून, कैंसर. ये सब फैमिली हिस्ट्री होगी. समझा? गॉट इट? योर फैमिली वाला तुमको तो पता है, फैमिली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, TB, अस्थमा. पास्ट हिस्ट्री, डिसीज ड्यूरेशन ड्रग, डोज 4D कर दो उसको. ओके, सो ये हिस्ट्री टेकिंग के नोट्स थे. पानी पियो सब लोग फट से.